Okay, I hope that you have studied the tree diagram, right? So in this particular second video, we are going to study about the sources of joint stock, sources of capital of a joint stock company. Here you can see the external sources, that is when the capital is raised, that is collected, RAISED, raised means collected, when the capital is collected from outsiders, and internal source when the capital is made available from within the organization. Very important word, from within, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई फंड्स जब जमा किए जाते हैं तो उसको बोला जाता है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्री डायग्राम. That is why I have started second video, because you should go through this tree diagram carefully. In owned capital there are two sources, that is shares and retained earnings. Today we are going to study about what shares are, so उसको हम लोग बाद में explain करेंगे. Shares and retained earnings. Retained earnings is that particular source of capital of a joint stock company which an established joint stock company can use, right? A newly started joint stock company cannot have retained earnings. एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. retained earnings में तुम लोगों ने तुम्हारे प्रॉफिट का एक पार्ट जो साइड में जमा करके रखा, वो पैसा हम लोग यूज़ करते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि अ न्यूली स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी कैनॉट हैव रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि अभी तो उनकी कंपनी शुरू हुई है, right? So they don't have deposited profits, they don't have accumulated profits in the form of general reserves. General reserves you might have studied in final accounts topic in 11th BK, right? So the second source for a freshly started, newly floated joint stock company is shares, and there are two types of shares, that is equity shares and preference shares. So joint stock company can collect capital, owned capital, by issuing equity shares as well as preference shares. Okay. Now in borrowed capital there are various sources available, that is issue of debentures, acceptance of public deposits, issue of bonds, ADR or GDR, that is American Depository Receipts or Global Depository Receipts, loan from banks and financial institutions, and trade credit. We are going to study some sources in detail and some sources in brief later on. So again I am revising that there are two sources of capital of a joint stock company, that is owned capital and borrowed capital. If the time permit, I will dictate you the distinguish between owned capital and borrowed capital afterwards. Okay, so let's start. Sources of owned capital, right? मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूँ. The capital raised by the company with the help of the owners, that is shareholders, is called as owned capital. Owned मतलब खुद का. जो पर्टिकुलर कैपिटल शेयर होल्डर खुद जमा करते हैं बाय परचेसिंग द शेयर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कॉल्ड एज ओन्ड कैपिटल, एंड ओन्ड कैपिटल रिमेन्स इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी अप टू इट्स वाइंडिंग अप. ओन्ड कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी में वाइंडिंग अप तक रहता है. The second, in the second paragraph you can see the line, another form of owned capital is retained earnings. Retained earnings is technically known as flowing back of profit. In Marathi it is called as nafa vyavasayat varg karne, which means in English that is reinvestment of profit in business. तुम्हारी कंपनी ने कमाया हुआ प्रॉफिट जब घूम के तुम्हारे ही कंपनी में वापस इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है री इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स इन द बिजनेस बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. मतलब पहले एक नया बिजनेस स्टार्ट करो, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट का एक टुकड़ा साइड में रखो, और जब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा उसको घूम के वापस से अपने बिजनेस में तुम लोग री इन्वेस्ट करो. दैट इज कॉल्ड एज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक company, which is also known as retained earnings or flowing back of profit. So it is one of the sources of internal finance. Here you can see internal finance. But as I said earlier, retained earnings, the source which is called as retained earnings is applicable for an established joint stock company. You cannot
have retained earnings when you are a newly started, newly floated joint stock company. Okay, then see the line, owned capital is regarded as permanent capital. जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले तुम लोगों को बताया था कि owned capital is to be repaid only at the time of winding up of a joint stock company, जिसको liquidization या liquidation बोला जाता है. मतलब जब तुम्हारी कंपनी बंद हो जाती है तो ही तुम्हारा ओन्ड कैपिटल वापस किया जाता है, तब तक नहीं, राइट. So owned capital remains in joint stock company up to its winding up. So it is called as a permanent capital. Owned capital is called as a temporary capital, क्योंकि डिबेंचर के जो पैसे होते हैं, डिपॉजिट्स के जो पैसे होते हैं, you will have to repay them after a specific period of time. बट शेयर वालों के जो पैसे होते हैं, दैट यू आर सपोज टू रिपे ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, सो if you remember in 11th we have studied about one person, that is promoters. Here you can see the word promoters. Promoters वो लोग होते हैं जो joint stock company start करने का काम करते हैं. So promoters decide the share capital required by a company. मतलब टोटल हम लोगों को शेयर कैपिटल कितना लगने वाला है. जैसे अगर ट्री डायग्राम में तुम लोगों को समझाओ, सो हाउ मच इज़ द टोटल शेयर कैपिटल नीडेड, उसमें इक्विटी शेयर कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर कितना होगा. प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जाके हम लोगों को 8 प्रकार पढ़ने हैं, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा, बाइफरकेट हुआ रहेगा, ये सब बातें पहले प्रमोटर्स को सोचनी पड़ती है. एंड दे मेंशन इट इन द, हियर यू कैन सी द वर्ड capital clause of memorandum of association. If you remember in 11th I have told you that while forming a joint stock company, three basic documents are prepared: memorandum of association, articles of association and prospectus. So this is memorandum of association, and in memorandum of association you know that there are various clauses, right? So in the capital clause, if you remember memorandum में कौन से clause होते हैं, जैसे कि name clause होता है, domicile clause होता है, capital clause होता है, etc. So in the capital clause, the total amount which is required by a joint stock company in the form of share capital is mentioned, which is also called as authorized capital. So this is what is owned capital. So please take a break and read what do you mean by the word own capital. If you have any doubts, you can afterwards ask me. I will wait for a minute, right? Please go through what is owned capital. Okay, I hope you have gone through what is owned capital. Now we will start with first source of owned capital, that is shares. As you have already studied the topic what is share and debenture, or at least you have gone through these names, that there are some shares and debentures, right? A joint stock company issues shares and debentures to correct its owned and owed capital respectively. You might have gone through this particular line in 11th commerce, right? आज हम लोग पढ़ेंगे कि शेयर्स क्या होता है, व्हाट इज शेयर्स. आज तक बहुत सारे लोगों ने ये शब्द पढ़ा हुआ है, शेयर मार्केट एक्सेट्रा, बट बहुत कम लोगों को पता है कि शेयर क्या होता है. मैं पढ़ रहा हूँ डेफिनेशन, तुम लोग भी मेरे साथ पढ़ो. द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 या अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84. इसको ऐसे सेक्शन 284 ऐसे नहीं पढ़ने का, 284 पढ़ोगे तो वो 284 हो जाएगा. इसको कैसे पढ़ने का? द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय या अकॉर्डिंग टू या इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 of Companies Act 2013 as share means a share in the share capital of the company.
If you remember, I have already mentioned you, I have already told you this definition of share in 11 commas. That is, a share is a share in the share capital of the company and includes stock. वो जो लास्ट में तुम लोगों को वर्ड दिख रहा है स्टॉक, उसका मीनिंग होता है अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स पुट टुगेदर फॉर कन्वीनियंस. कभी मैं फ्री रहूँगा तो मैं तुम लोगों को इसका भी मीनिंग समझा दूंगा, बट याद रखो कि व्हेन देयर आर सम शेयर्स इट इज शेयर्स, एंड व्हेन अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इज पुट टुगेदर फॉर योर एंड माय कन्वीनियंस इट इज कॉल्ड एज स्टॉक. हेंस देयर आर टू वर्ड्स, शेयर मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज. कभी तुम लोगों ने सुने रहेंगे. तो हम लोग पढ़ते हैं शेयर के बारे में. शेयर क्या है? अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो पहला वर्ड ये तुम लोगों को दिख रहा है, अ शेयर, दिस इज अ शेयर, मतलब एक कागज़ का टुकड़ा इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट. ये शेयर, ये दिस अ शेयर, ये क्या है? मीन्स अ शेयर. अब यहाँ पे मैं आ गया. ये शेयर, यहाँ पे शेयर का मतलब है हिस्सा, पार्ट, राइट. उसको हम लोग बोलते हैं भाग. सो अ शेयर इज अ शेयर, शेयर मतलब हिस्सा. किसका हिस्सा? इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. इमेजिन करो कि अ शेयर कैपिटल मतलब एक दीवार, एक दीवार जो 100 ईंटों से बनी हुई है. सो शेयर कैपिटल इज अ दीवार, इट इज़ अ वॉल, राइट, जिसमें 100 ईंटें हैं. उनमें से एक ईंट मतलब एक शेयर. 100 ईंटों वाली दीवार में मतलब शेयर कैपिटल में एक ईंट मतलब एक शेयर. इसका मतलब हो गया कि अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तुम लोगों ने मान लो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और वो पिज़्ज़ा आने के बाद तुम्हारे घर के लोगों ने उसको कट किया, और तुम्हारे नसीब में जितना उसका पार्ट आया वो उस पिज़्ज़े का तुम्हारा क्या था? ये पार्ट था, शेयर. पूरा पिज़्ज़ा तुम्हारा नहीं है, पूरा पिज़्ज़ा इज शेयर कैपिटल. पूरा पिज़्ज़ा इज शेयर कैपिटल. उसमें से तुम्हारा जो पार्ट है, दिस पार्ट शेयर इज अ शेयर. हेंस इट इज सेड दैट a share is a share in the share capital of the company and includes stock. फिर शेयर क्या होता है? वेरी सिंपल, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखो. शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड. जैसे मैंने बोला कि अगर 100 ईंटों से एक दीवार बनी है तो उसमें से हर एक ईंट मतलब एक शेयर. तो ऐसे 100 ईंटें मतलब 100 शेयर्स, एंड टोटल उन 100 शेयर्स को मिलके मैं बोलूँगा शेयर कैपिटल. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट. See the word, you can see here. It is the smallest part of the total share capital of the company, and every share has got its face value. वो क्या होता है मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा. फिलहाल इतना याद रखो कि a share is a small unit in the joint stock company's capital, or a share is a smallest unit of capital of a joint stock company. So a share is a share in the share capital of the company, and a person, one who purchases shares of a joint stock company, is called as shareholder, which is a member or owner of the joint stock company. हम लोगों को किसी भी joint stock company के कितने शेयर परचेस करने हैं, it is dependent upon our wish, our desire. मुझे चाहिए मैं 100 शेयर खरीद सकता हूँ, मुझे चाहिए मैं 1000 शेयर खरीद सकता हूँ, राइट. सो a person can purchase any number of shares according to his wish. Once you purchase shares, you will become shareholder. After becoming a shareholder, you will become the co-owner of the joint stock company. याद रखो, मैंने वर्ड बोला co-owner क्योंकि तुम लोग उस जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकेले ओनर नहीं हो. तुम्हारे साथ और भी शेयर होल्डर रहेंगे, वो भी उस जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर होंगे. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ शेयर. एक एक करके पढ़ेंगे. जैसे कि फर्स्ट फीचर इज मीनिंग, जस्ट पढ़ा हम लोगों ने कि व्हाट इज शेयर. A share is a share in the share capital of the company and includes stock. Point number two is ownership. Owner of a share is called a shareholder. अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर आदमी जब शेयर खरीदता है, he becomes a shareholder, and after becoming a shareholder, he becomes the owner of a joint stock company, that is co-owner. Now, third point is distinctive number. Distinctive number means every share has got its own number for identification. जैसे कि तुम लोग कॉलेज में डिवीजन ए में बैठते हो या डिवीजन ए में बैठते हो, तो रोल नंबर 1 ये डिवीजन ए में भी होता है, डिवीजन बी में भी होता है, मगर रोल नंबर 1
ये डिवीजन ए का, तो उसका कैसे होगा 11th कॉमर्स ए का रोल नंबर 1, 11th कॉमर्स बी का रोल नंबर 1, 12th कॉमर्स ए का रोल नंबर 1, 12th कॉमर्स बी का रोल नंबर 1। जैसे तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक नंबर रहता है तुम्हारा रोल नंबर, वैसे ही एवरी शेयर इज गिवन अ डिस्टिंक्टिव नंबर। दिस पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट। जैसे कि इफ अ पर्टिकुलर पर्सन or a shareholder says that I have got 100 shares, so he has got share number 1 to 100। दूसरा शेयर होल्डर बोलेगा कि I have also 100 shares, तो उसके पास रहेंगे 101 to 200 shares, something like that। So every share has got a distinctive number, but when the shares are in the dematerialized form, see the word dematerialized, ये हम लोग बाद में तुम लोगों को जब डिपॉजिटरी वाला लेसन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। डीमटेरियलाइज्ड शेयर मतलब द शेयर्स विच आर नॉट इन मटेरियलाइज्ड फॉर्म, जिन पर्टिकुलर शेयर का शारीरिक अस्तित्व नहीं है, द शेयर्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन शेयर सर्टिफिकेट और द शेयर्स सॉरी the shares which are expressed in electronic form are called as dematerialized shares, and dematerialized shares don't have any distinct number। फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर शेयर डीमटेरियलाइज्ड है तो उसका डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होगा, बिकॉज दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अदरवाइज इफ यू आर हैविंग शेयर्स इन अ फिजिकल फॉर्म, दैट इज in the form of a share certificate, then every share must have a distinctive number। Fourth point is evidence of title। It is very easy। evidence of title का मतलब होता है कि when a person purchases shares, he will be allotted share certificate। ये तुम लोग थर्ड लेसन में पढ़ोगे, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर वारंट क्या होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। So when a particular person is given a share certificate, number of shares are mentioned in that particular share certificate, that is Mr. A has got 100 shares, that is share number 1 to 100, and that particular document called as share certificate is the title of ownership of shares। मतलब अगर कोई तुम लोगों को पूछे कि बाबा तेरे पास क्या प्रूफ है, शेयर्स तू बोल रहा है कि तेरे पास शेयर है, उसका तेरे पास क्या प्रूफ है, सो द प्रूफ इज शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर होल्डर का नाम और उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं वो सब लिखा हुआ रहता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि मेरे पास 100 शेयर्स है, तो मैं तुम लोगों को 100 कागज़ के टुकड़े नहीं दिखा सकता। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा एक शेयर सर्टिफिकेट जिसके अंदर ये मेंशन रहेगा कि मेरे पास 100 शेयर्स है, दैट इज शेयर नंबर 1 to 100। गेटिंग माई पॉइंट? ये पॉइंट हमेशा याद रखो कि अ शेयर इज़ नॉट एनी विजिबल थिंग। मैं तुम लोगों को शेयर एक कागज़ के टुकड़े में नहीं दिखा सकता, मैं तुम लोगों को शेयर दिखा सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट विच इज़ एविडेंस, दैट इज प्रूफ। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, और यहाँ पे टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, राइट। मैं उन 100 शेयर का मालिक हूँ, मेरे पास उनका टाइटल है, इसका प्रूफ, इसका एविडेंस करके होता है शेयर सर्टिफिकेट। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैं थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ, ऊपर लेने के बाद भी वो तीनों नहीं आ रहे एक साथ में, तुम लोग देख सकते हो। There are 3 values of share. First is face value, second is issue price, that is issue value, and third is market value. So every share has got these every share had got these 3 values। एक एक करके पढ़ाता हूँ। First is face value, clear cut लिखा है देखो, the value which is written on the share certificate or mentioned in the memorandum of association is called as face value। कोई भी नोट हम लोग जब हमारे सामने रखते हैं तो उसको देख के मैं पहचान सकता हूँ कि अरे ये 50 रुपये की नोट है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा स्पेसिफिकली लिखा है 50 रुपये। ये 50 रुपये जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ये उस नोट की फेस वैल्यू है। तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जब ऐसे लिखा जाता है कि मिस्टर अक्षय सर इज़ बोनाफाइड ओनर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये जो ऑफ ₹10 ईच ऐसा उसमें लिखा है, ये ऑफ ₹10 ईच नथिंग बट इज़ अ फेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। ये उन पर्टिकुलर शेयर की
फेस वैल्यू है। फिर सेकेंड वर्ड इज इशू वैल्यू, दैट इज इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब कंपनी अपने शेयर पहली बार मार्केट में कितने रुपए में बेचती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपये का शेयर है, कंपनी चाहती है कि अपने शेयर फटाफट बेचे जाने चाहिए, तो वो उसको 8 रुपये में भी बेच सकती है। तो 10 रुपये अगर उसके ऊपर लिखा है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, तो वो हो गया उसका फेस वैल्यू। और कंपनी ने वो शेयर अगर 8 रुपये में बेचे, तो वो हो गई उसकी इशू वैल्यू, दैट इज इशू प्राइस, राइट। सो फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। एंड अब फिर से एक बार तुम लोगों को जस्ट रिवाइज करवाता हूँ कि इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी। कंपनी ने मान लो कि कोई जो भी शेयर पहली बार मुझे बेचे, मैंने वो शेयर मेरे पास रखे और कुछ समय के बाद जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने शेयर मार्केट में जाके वो शेयर्स बेच दिए, तो मैंने जितने रुपए में शेयर वो बेचे वो हो गया मार्केट वैल्यू। एंड मार्केट वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड बाय द कंपनी, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स। डिमांड फॉर मतलब उस पर्टिकुलर जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर का मार्केट में डिमांड कितना है और उन पर्टिकुलर शेयर का मार्केट में सप्लाई कितना है, इन दोनों ने मिलके जो प्राइस फिक्स की, जो वैल्यू फिक्स की, उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू। फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। फेस वैल्यू इज द वैल्यू विच इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट और इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इशू प्राइस इज दैट प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, एंड मार्केट प्राइस is that value, or market value is that value which is determined by share market through demand for the shares and supply of shares. So this point was little bit complicated. Next point is rights. So once a particular share or once a particular person purchases shares, he has got certain rights, राइट। अ शेयर कन्फर्स सर्टन राइट। कन्फर्स मतलब जैसे ही एक आदमी शेयर खरीदता है तो उसको अपने आप कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि कौन से अधिकार? फर्स्ट इज राइट टू रिसीव डिविडेंड। ये हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं कि डिविडेंड क्या होता है। ब्रीफली बताऊंगा तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट फर्दर लेसन्स, राइट। So a shareholder has got a right to receive dividend. Number 2, he has right to inspect the statutory books. जैसे कि तुम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चेक कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हो। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग। जब शेयर होल्डर लोगों के लिए कोई मीटिंग बुलाई जाएगी तो तुम लोग जाके वो अटेंड कर सकते हो। सिर्फ तुम लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते बल्कि तुम लोग उस मीटिंग में जाके वोट भी कर सकते हो, ये भी तुम्हारा अधिकार है। ऐसे कई सारे अधिकार शेयर होल्डर को शेयर खरीदने के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट इज इनकम। इस पर्टिकुलर इनकम को किसी बुक में, दिस इज अ टेक्स्ट बुक, बट इफ यू विल रेफर टू डिफरेंट नोट्स, इनकम में बी डिनोटेड एज रिवॉर्ड ऑल्सो या रिटर्न। इसके 3 हेडिंग हो सकते हैं। एक हो सकता है इनकम, दूसरा हो सकता है रिवॉर्ड, या तीसरा हो सकता है रिटर्न। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर खरीदता है तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको क्या मिलता है? तो उसको मिलता है अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट। सी द वर्ड अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट विच इज़ कॉल्ड एज डिविडेंड। ये जो अभी मैंने बताया, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो शेयर होल्डर को डिवाइड किया जाता है, जो शेयर होल्डर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। आगे जाके हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि अ डिबेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एंड अ शेयर होल्डर गेट्स प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि अ शेयर इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच यू कैन ट्रांसफर। सिंपली स्पीकिंग, यू कैन सेल यूर शेयर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 11th OC में तुम लोगों ने शायद ये टॉपिक ठीक से पढ़ा होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। SP में भी मैंने उसका थोड़ा सा तुम लोगों को मेंशन किया था। एक बात सिर्फ बता रहा हूँ कि शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ।
शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर कोई भी किसी को भी उठ के नहीं बेच सकता. देयर आर सम रूल्स, राइट. बट यहाँ पे लाइन पढ़ो, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल because there are no rules for maximum number of members in a public limited company. So shares of a public limited company are freely transferable, but shares of private limited company are not freely transferable. कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों कंपनियों के शेयर ट्रांसफरेबल है. एक फ्रीली ट्रांसफरेबल है पब्लिक लिमिटेड के, एक फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है. बट आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशंस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तुम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर भी बेच सकते हो. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ, पॉइंट नंबर 10, जो आगे हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. दैट इज व्हाट इज काइंड्स ऑफ शेयर्स. काइंड्स ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो नोन एज टाइप्स ऑफ शेयर्स. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. In textbook they have mentioned that there are two types of shares, equity share and preference shares, but actually there are four different types of shares: equity shares, preference shares, bonus shares and deferred shares. Pay attention, फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ. There are four different types of shares: equity shares, preference shares, bonus shares, BONUS, bonus shares, and deferred shares. Deferred shares are also called as founder shares, pioneer shares, promoter shares, etc. चार नाम: इक्विटी, प्रेफरेंस, बोनस, डेफर्ड. मगर बोनस शेयर और डेफर्ड शेयर एक्चुअली इक्विटी शेयर्स ही होते हैं. बोनस शेयर वो इक्विटी शेयर होते हैं जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं. डेफर्ड शेयर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते डेफर्ड शेयर्स वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो प्रमोटर्स को दिए जाते हैं. इसके लिए बोनस शेयर और डेफर्ड शेयर को लिस्ट में नहीं लिखते. तो चार में से दो कट हो गए, बचे दो. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. आगे लिखा है, देखो यहाँ पे वो लाइन, अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क. मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स मिलके फिक्स करते हैं कि टोटल शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, उसमें इक्विटी शेयर कितने होने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स कितने होने चाहिए. फिर जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था कि ये प्रेफरेंस शेयर्स के टोटल 8 प्रकार है. तो उसमें क्यूमुलेटिव कितने होने चाहिए, नॉन क्यूमुलेटिव कितने होने चाहिए, पार्टिसिपेटिंग कितने होने चाहिए, नॉन पार्टिसिपेटिंग कितने होने चाहिए, एक्सेट्रा. राइट. ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू two types. Shares are broadly classified into two types: equity shares and preference shares. अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम लोगों को डिटेल में आगे पढ़ना ही है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे आके हमारे फीचर्स ऑफ शेयर्स पूरे हो गए. फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनो. ये फीचर्स ऑफ शेयर्स थे, ये फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे. क्योंकि तुम लोग देख सकते हो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, हम लोगों को आगे जाके इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स अलग अलग पढ़ने. देखो, सी फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसके बाद ये हो जाएंगे. फिर तुम लोग देख सकते हो, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स. ये देखो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स हम लोगों को आगे पढ़ने ही हैं. अभी मैंने तुम लोगों को जो 10 पॉइंट पढ़ाए वो थे फीचर्स ऑफ शेयर्स. वो किसी भी इक्विटी या किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स नहीं है. मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, एक बार सारे के सारे फीचर्स तुम लोग पढ़ो. कोई भी डाउट रहेगा तो जैसे कि गुप्ता सर ने भी तुम लोगों को बताया था, मैं भी एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि तुम लोग हम लोगों को कोई भी डाउट फ्रीली पूछ सकते हो. तुम लोग व्हाट्सअप करो, कॉल करो, वी आर हियर फॉर योर हेल्प एंड योर बेटरमेंट. तो तुम लोग कोई भी डाउट मुझे पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अगर अवेलेबल नहीं रहूँगा तुम लोग गुप्ता सर को भी फ़ोन कर सकते हो, डजेंट मैटर. या तुम लोग हम लोगों को व्हाट्सअप भी कर सकते हो. थोड़े टाइम के लिए मैं स्क्रीन होल्ड करता हूँ, सारे के सारे फीचर्स एक बार पढ़ लो और कोई भी डाउट रहेगा तो नोट डाउन करो.
मेरे ख्याल से तुम्हारे पहले 5 पॉइंट पढ़ के हो गए रहेंगे। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से सब तुम लोगों का ये पढ़ के हो गया रहेगा। छोटा सा ही कंसेप्ट था। अब याद रखो, अगर तुम्हारे पास ये पीडीएफ्स अवेलेबल है, राइट, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट तुम लोगों को करता हूँ कि मेरे अगले लेक्चर के पहले तुम लोग अगर ये इक्विटी शेयर्स, उसका ये मीनिंग और ये जो फीचर्स के पॉइंट है ना, सिर्फ पॉइंट, परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, ये अगर तुम लोग सामने रख करके बैठोगे लिख के रिटर्न, तो थोड़ा हमारा मतलब स्पीड एक्सप्लेन करने का बढ़ेगा। उससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का मीनिंग तुम लोग एक बार खाली लिख लो। सिर्फ मीनिंग, कितना मीनिंग तुम लोगों को लिखना है वो भी मैं तुम लोगों को लगे तो बता देता हूँ। सी, इक्विटी शेयर्स यहाँ से शुरू करना है। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनीज एंड डिफाइंस इक्विटी शेयर्स एज those shares which are not preference shares. The above definition reveals that the equity share do not enjoy preference for dividend, and the equity share do not have priority for repayment of capital at the time of winding up of a company. इतना ही इंट्रोडक्शन तुम लोगों को लिखना है इक्विटी शेयर का। एंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इसका एकदम अपोजिट मीनिंग है। सी, as the name indicates, these shares have certain preferential right distinct from those attached to equity shares. That is, the shares which carry a following preferential right are termed as preference shares. Number one, a preferential right as to payment of dividend during the lifetime of the company, and preferential right as to return of capital in the event of the winding up, that is liquidation of a joint stock company. ये मीनिंग करके तुम लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना है। एंड प्लीज़ do have a note of only the headings of features, that is preference for dividend, then preference for repayment of capital, fixed return, nature of capital. So it will help us to reduce the total time taken for explaining these particular points. So there will not be need of every time scrolling this up and down, right? We will be having a PPT presentation in depending upon this particular topic, and I will also give you the distinguish between equity shares and preference shares. Okay, thank you very much. See you in the next lecture. Goodbye, take care, and stay at home and stay safe also.